Hello there, and welcome back here to my YouTube channel Karisim, and this is going to be a third part of NIT Hamirpur review. So if you have not watched part 1 and part 2, so make sure to watch them first. I will give the link in the description box or the pinned comment. So if you have clicked on this video, please watch this video full, otherwise skip here. ठीक है. आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी कन्फ्यूजन, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन करी है. सो ट्राई टू बी पेशेंट और 2x पे देख लो, आपको जैसे देखना है देख लो, बट या तो पूरी देखो या बिल्कुल भी मत देखो. दिस इज़ माई एडवाइस. लेट्स स्टार्ट विद द NIT Hamirpur review. So about NIT Hamirpur, as NIT Hamirpur was established in 1986 as a regional engineering college, it was converted to NIT in 2002 and officially recognized under the NIT Act in 2007. So this was about NIT, and also I will give the timestamps of all the information you want to know, so that you can click on that particular information which you want to know about. So campus life के बारे में हम अगर बात करें तो आपका कैंपस बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, एंड हॉस्टल विंडो से आपको बहुत सुंदर सनसेट और माउंटेन व्यूज़ मिल जाएंगे, सनसेट पॉइंट्स मिल जाएंगे, एंड every day feels like you are living in your some trip. Okay, so it's like that only. And now ranking and reputation. So NIT Hamirpur is considered as a tier 2 college with decent reputation. So NIRF ranking according to 2024, so for BTech it's 101 to 150 band, and for architecture it's 32 rank. So also many people ask me about private और NIT कि क्या चूज़ करना चाहिए. So NIT carries a brand value. तो degree from here holds a recognition in the industry, but also if you prefer skill over any brand value, then go for private, your preferred branch, and it's all sorted then. So admissions. So many people ask me about lame question ki like how to get admission. So it's not like you go with your parents and give interview and you get the admission. It's not like that. So admission is through JEE mains. To secure seat here, aim for percentile of 95 plus. ठीक है. You should also have at least 75% in your class 12th. Okay, so don't create confusion here. There is no 50% criteria. It's 75 for right now. After the JEE advanced result, the JOSA registration process starts, and इस पार्ट के लिए अगर मैं बनाना चाहूँगी तो अलग से एक वीडियो बन जाएगी. तो अगर आपको जोसा के बारे में एंड ऑल देखना है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. सो नाउ फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप्स. तो द फीस स्ट्रक्चर डिफर्स बाय कैटेगरी एक्सेप्ट फॉर हॉस्टल. जो आपकी हॉस्टल फीस रहेगी वो आपकी सबकी सेम होगी, है ना, बट यू कैन चेक द फी ब्रोशर. मैंने नीचे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, उसमें आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज डिफरेंट फीस होती है. जर्नल के लिए अलग होती है, EWS के लिए अलग, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फैमिली इनकम. अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है या फिर आपकी 1 लाख से कम है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट. एंड आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. एंड अगर आपके पेरेंट्स कोई भी डिफेंस सर्विस में है तो PMSS करके एक स्कीम होती है, तो ट्राई टू इनरोल इन दैट. मुझे इसके बारे में बहुत लेट पता चला था, सो आई डिडंट अप्लाइड फॉर दैट, बट इफ़ यू आर एन आर्मी पर्सोनल देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट. Okay, so for fee, if you are coming under SC, ST, or your family income is less than 1 lakh or something, then you have to make sure to share legal documents and bring the original copies. Okay, so make sure of that thing. And now हॉस्टल एंड आउटसाइड स्टे. हॉस्टल में अराउंड मतलब पूरे कैंपस में अगर हम देखा जाए तो उसमें अप्रॉक्स 4000 स्टूडेंट्स रहते हैं. अगर आप चाहो तो आप बाहर के लिए भी रुक सकते हो, PG वगैरह लेके बाहर रुक सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो हॉस्टल में भी रुक सकते हो. इट्स नॉट लाइक कंपल्सरी, इट्स डिपेंड्स ऑन यू एंड योर पेरेंट्स, बट मोस्टली लोग
फर्स्ट ईयर तो एटलीस्ट कैंपस में ही रुकना प्रेफर करते हैं, बिकॉज आउटसाइड देयर इज़ नॉट कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, एंड आउट कैंपस में आपके कनेक्शन भी हो जाएंगे. सो दैट्स अ बेटर थिंग. अगर आप बाहर भी रहना चाहते हो तो रहो, बट आई वुड से कि फर्स्ट सेमेस्टर तो एटलीस्ट आप कैंपस में ही रुको, हॉस्टल्स में रुको. सो अगर आप बाहर लेना ऑप्ट करते हो, देन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको 8 बजे कैंपस छोड़ के चले जाना है. ठीक है, 8 बजे इट्स योर आउट टाइमिंग. ओके, इन टाइमिंग नहीं, आउट टाइमिंग. सो इट्स लाइक दैट ओनली. एंड इसकी वजह से ना आपके क्लब्स और सोसाइटीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको जब फेस्ट आता है तो आपको काफ़ी टाइम तक काम करना पड़ता है. बट ड्यू टू दिस 8 PM सीन, few students like lose the opportunities and couldn't be a part of club and all. So if you can manage, then it's okay, but clubs prefer who can stay at night and work for them. like 11:30 तक उनकी टाइमिंग होती है, एक्सटेंड अगर होता है तो दैट्स द थिंग. इन दोनों के अलग से प्रोज एंड कॉन्स है. हॉस्टल और आउटसाइड का बोला जाए तो आई वुड प्रेफर हॉस्टल मोस्टली, बिकॉज मैं बाहर रही भी नहीं और मेरे को आइडिया भी नहीं है ज़्यादा. तो इफ़ यू आर इनटू थिंग्स, ओके, सो इफ़ यू वांट टू डू फ्यू थिंग्स विच allowed in hostel, then you can prefer outside, but it's personally your choice. So now I know there is a thing on Quora about strict rules in NIT Hamirpur for girls. ठीक है, एंड आई ऑल्सो सॉ इन सम वीडियो दैट कि गर्ल्स सिर्फ 3 घंटे ही बाहर रुक सकती हैं आफ्टर क्लासेस. मतलब इट्स लाइक आई डोंट नो दैट थिंग पहले होती होगी, बट सेम टाइमिंग होती है 9:30, और फर्स्ट ईयर में आपकी टाइमिंग होगी 6:30. ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होगा. उसके बाद आप लोगों की टाइमिंग हो जाएगी 9:30, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए. पर उस टाइम पे लड़कियों को सीधा अंदर होना होता है, तुम्हारी बायोमेट्रिक होती है, एंड यू हैव टू स्टे इन हॉस्टल. बट जो सीनियर हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के, दे स्टिल कैन रोम अराउंड इन कैंपस आफ्टर 9:30. तो उनका क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट इशू नहीं है, गार्ड्स उनको कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं. बट अगर कोई लड़की दिख जाएगी बाहर तो इसके लिए एक्शन हो जाएगा, हॉस्टल कमेटी एंड ऑल वगैरह वगैरह हो जाएगा. बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 5 बजे अंदर जाना है, 6 बजे अंदर जाना है, क्लास के बाद सीधा 2 घंटे के बाद हॉस्टल में जाना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपकी टाइमिंग 9:30 रात की. ठीक है, तो आप उस टाइम पे आप कहीं पे भी घूम सकते हो पूरे कैंपस में. और आपको वीक डेज या वीकेंड्स में कुछ ऐसा वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप बाहर कब जा सकते हो कब नहीं. आप हफ्ते में किसी भी दिन मार्केट जा सकते हो, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको नहीं पता होता है तो उनको सैटरडे को अलाउड होता है. ओनली सैटरडे, नो संडे या फिर मंडे एंड ऑल. दे कैन ओनली गो आउट ऑन सैटरडेज. So this is the thing I want to clear here first. So there are separate hostels are provided for girls and boys, juniors and seniors. Pantries are available in girls hostel and night canteens in boys hostel. So girls hostels have washing machine, but boys hostels have not all the hostels, but few या फिर bigger hostels have laundry system where you have to pay and you will get your laundry done. So kettles and irons are allowed. Like most of the hostels में allowed है. कभी कभी वो वार्डन पे भी डिपेंड कर जाता है कि they are allowing it or not. So most of the hostels में ये चीज़ allowed है. So now mess and food. So जो food है वो अच्छा है, इट्स नॉट लाइक दैट बैड जितनी मैंने बुराइयाँ सुनी हैं. एंड बड़ा ही रेयर केस होगा कि आपको उसमें कभी कीड़ा दिख जाए. ठीक है, इट्स आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा इशू है, बट कभी कभी हो जाता है चीज़ें. ठीक है, दे आर ह्यूमंस, नॉट एवरीवन इज़ परफेक्ट, सो इट्स जस्ट ठीक है, हो जाता है. और आपको एक बात बताऊँ तो जितने छोटे हॉस्टल होंगे उतना ही अच्छा उनका खाना होगा. सो देर इज़ वन थिंग इन NIT कि आपके हर एक हॉस्टल की अलग मेस होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी सिंगल मेस होगी या फिर 2 हॉस्टल की सेम मेस होगी या गर्ल्स हॉस्टल्स की सेम मेस होगी. नो, सब हॉस्टल्स की अलग अलग मेस है. अगर आपका हॉस्टल छोटा है तो
प्रिफरेबली आपके हॉस्टल में खाना अच्छा बनेगा एंड वैरायटी ज़्यादा होगी क्योंकि कम लोग हैं, ठीक है। सो नाउ फैसिलिटीज़ एंड एसेंशियल्स, तो वाईफाई इज़ अवेलेबल। बस यही सीन हो जाता है कि कभी कभी किसी ब्लॉक का वाईफाई चला गया, कभी किसी ब्लॉक का चला गया, बट इट्स देयर, ठीक है। आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी एंड योर वाईफाई विल बी डन। सो लैपटॉप इज़ नेसेसरी। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी कि आर्किटेक्चर के लिए कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। सो राइट नाउ आई हैव एसर नाइट्रो 5 1 TB एंड वो मैंने लिया था अमेज़ॉन ग्रेट फेस्टिवल सेल के टाइम एंड इट वॉज अराउंड 80,000। सो आई वुड से दैट्स अ डिसेंट लैपटॉप एंड मेरी सारी चीज़ें फंक्शन बहुत अच्छे से करती हैं। बट इफ़ यू आर फ्रॉम बीटेक देन यू माइट हैव डिफरेंट things in which you want to work and demands. So I would share a different video asking some of my friends what are their criteria for BTech students and then I will let you know. So water supply and cleanness are maintained. So आपके डेली कॉरिडोर और वॉशरूम की सफाई होती है, अगर नहीं होती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। वाटर सप्लाई ठीक होता है पर कुछ जो बड़े हॉस्टल हैं वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है और ख़ासकर रेनी सीज़न के टाइम, बिकॉज ऐसा होता है ना हिमाचल में लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से जो पाइप्स वगैरह हैं वो ब्रेक हो जाते हैं या फिर जो है गंदा पानी आने लग जाता है जिसकी वजह से सप्लाई रोक देते हैं, क्योंकि अगर वो गंदा पानी अलो कर देंगे तो उसके साथ पत्थर वगैरह आ जाएंगे एंड उनका सिस्टम ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो सप्लाई रोक देते हैं। तो आपको बारिश वाले सीज़न में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो now the attendance criteria. So your attendance criteria is 75%. अगर आपकी अटेंडेंस बिलो 70 जाती है तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो, एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। अगर आपकी until unless आपकी कोई इमरजेंसी नहीं आ गई हो या फिर कुछ मेडिकल इशू ना हो, तो दैट्स द केस। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स। तो जो 2025 की हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है वो गई है 2.05 करोड़ एंड बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनीज विजिटेड द कैंपस एंड लेट मी शेयर यू द डाटा ऑन द स्क्रीन so you can look at this data and clear your confusions regarding placements. So लेस देन 10 LPA जिनकी लगी है वो है 39% स्टूडेंट्स, बिटवीन 10 to 20 LPA 46% स्टूडेंट्स एंड 20 to 30 LPA 9% स्टूडेंट्स एंड below 30 LPA is 6%. So for more clear vision you can take screenshot and look at this data. Okay, and also I will share the link of 2023 data placement data from website. So now place internships. So many of the companies came for internships and वो लेकिन सबके लिए नहीं होती है। So let me tell you one thing, जो प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएंगी वो ज़्यादा आएंगी पर जो इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं एंड सिर्फ फ्यू स्टूडेंट्स एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ द पैकेजेस। मतलब अगर आप इंटर्नशिप्स में अच्छा मतलब टेस्ट होंगे आपके, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड मिल जाती है, 1 to 1.5 लाख कुछ ऐसे मिल जाती है। तो पर वो सबके लिए नहीं होती है, वो सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलती है। सो मेक श्योर ऑफ दैट, ब्रश अप योर स्किल्स एंड यू आर रेडी फॉर दैट। सो नाउ फैकल्टी एंड academics, though so it's NIT and faculty is well educated, so if you need any help with any topic so they will guide you, but you have to like आपको उनसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। डोंट बी रूड टू एनी टीचर, डोंट बी रूड टू एनी प्रोफेसर, otherwise they will punish you like whole class. So try to be polite with professors, like they are your seniors, ठीक है। तो so उनसे पंगे मत लो फालतू के। So it's just basic manners I would say कि आपको नहीं करना चाहिए।
एंड बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए होगी तो दे विल हेल्प यू. एंड इट्स एन इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, तो इट्स डेफिनेटली कि प्रैक्टिकल लर्निंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है. एंड अब बट डोंट वरी, स्टूडेंट्स ट्राई टू मेक इट अप बाय ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स या फिर ब्रिंगिंग कॉम्पिटिशन्स टू कॉलेज, pushing boundaries through creative projects, whatever. So it's up to you how much you try. So now curriculum and credits. So the curriculum and credits were changed after our batch, so make sure to visit official website for latest structure, and I will share the link in the description box for more information. Yes, please don't skip the video, okay? So branch changes no longer allowed, so whatever. तो अगर आप चाहते हो कि आपको कॉलेज में आके, मतलब हमारे बैच तक ये चीज़ थी, ब्रांच चेंज आप लोग कर सकते थे, हम लोग कर सकते थे मतलब, बट अब ऐसा हो गया है सीन कि अब आपके में ब्रांच चेंज का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इट्स क्रिएट अ हसल फॉर टीचर्स, क्योंकि आपके रोल नंबर सेम रहता है, रोल जो भी उनका सिनेरियो रहा होगा. पर अगर आप किसी भी तरीके से ये सोच कर आ रहे हो कि आप अंदर आके CS या फिर ECE या फिर किसी भी हायर ब्रांच वाले स्ट्रीम में या फिर शिफ्ट हो जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. जॉइनिंग क्लब्स एंड सोसाइटी आर मैंडेटरी नाउ, and I heard they have a 1 credit for that, so please make sure to join any club or society. So let me tell you about the clubs and societies offered by NIT Hamirpur. और अगर आपको कोई भी NIT हमीरपुर का क्लब या सोसाइटी ज्वाइन करना है तो आपको एक इंटरव्यू देना होगा, एंड यू हैव टू पास दैट इंटरव्यू. आपके 2 राउंड्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, एंड try to prepare something unique to showcase your talent, ठीक है. and let me tell you, अगर आप डांस में जाना चाहते हो, ठीक है, और म्यूज़िक क्लब का सीन क्या है कि they have lot of guitarists, so try to be a vocalist या फिर any other instrument, ठीक है. Let me tell you the notable clubs names. So first is Pixonoids for photography and design, Rhythmies for dance, music club, finance club, English club, Shrijan, it's for college magazine and literary. So PR यानी कि public relations, design and deco, design or crafts, and fine arts club, drama club, FashP for fashion. So now technical clubs are August, Robosoc, Medextrus, .exe, Vibhav, Abraxas, Hermentica and Matacom. So these are all the clubs. So now sports facilities. So first of all, there is no swimming competitions or pool here. Other than that, the sports covered here are cricket, football, volleyball and basketball and many others, chess also, and table tennis, pool. There are many games you can play here except for swimming. So now फेस्ट पे आ जाते हैं हम. तो हिल फेयर जो होता है वो हमारा एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, और फेस्ट से पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. गेम्स होते हैं, फन इवेंट्स होते हैं, एंड ये होता है सितंबर अक्टूबर के टाइम या नवंबर. एंड निम्बस होता है फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में कहीं पे. इनकी डेट्स चेंज होती रहती हैं, तो इट्स जस्ट. एंड निम्बस होता है हमारा एनुअल टेक फेस्ट. सो नाउ वेदर. So first thing, don't assume heavy rain, snowfall. Just because it's Himachal, it's not too cold or snow is rare. तो मैंने स्टूडेंट्स, मतलब अगर मेरे बैच से पूछा जाए, उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे स्नो होती है कि नहीं. सो दे थॉट कि वो ट्रेन से निकलेंगे एंड दे विल पुट देयर फुट ऑन स्नो, बट दिस इज़ नॉट द थिंग. यहाँ पे कोई बर्फ़ वगैरह नहीं होती है. सो इट्स लाइक नॉर्मल प्लेन्स में जैसा वेदर होता है, बट उससे थोड़ा कंफर्टेबल वेदर होता है. इट्स नॉट लाइक दैट हार्श. देखो यहाँ का सन बहुत हार्श होता है. दैट गिव यू सो मच टैनिंग. एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा टैन होता है उधर. माई स्किन टोन कम्प्लीटली चेंजेस. सो
try to carry umbrella, sunscreen, whatever you can. So that's the thing. And अगर आपको रात को, so the main thing here I would say, I few weeks या few months back मैंने एक अपने फ्रेंड से पूछा कि your sister is in some, I don't remember the name, but some engineering college, it was good. So I asked कि तुझे ऐसा रिग्रेट नहीं होता कि तेरी बहन इधर है? तो she said कि यार उधर का ना माहौल भले ही मतलब ऐसा होगा कि यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उधर का वेदर इट्स लाइक यू कांट गो आउटसाइड, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वहाँ का वेदर ऐसा होता है यू आर नॉट, यार मन नहीं करता जाने का, बहुत ज़्यादा हार्श गर्मी है, यू नीड कूलर एट नाइट, यू नीड AC एट नाइट, मतलब दे आर नॉट लिवेबल कंडीशंस. So then I thought this is the biggest pro for NIT Hamirpur. So this is the thing if you prefer. So now safety and rules. First of all, campus is safe, though you can encounter some monkeys or leopards. अभी तक leopard का कोई केस नहीं है, मतलब वो जंगल में घूमते रहते हैं. It's like बीच बीच में कुछ जंगल्स हैं, तो अगर आपको कोई leopard दिखेगा तो उधर ही दिखेगा, और वो भी it's not like that big case. सो नाउ मंकीज़ कुड बी अ केस, क्योंकि हाँ जब खासकर जब अच्छा मौसम हो जाता है वो मंकीज़ बाहर आ जाते हैं, या फिर सुबह सुबह. एंड रिसेंटली कि कुछ केस भी हुए हैं मंकीज़ के साथ. तो इफ़ यू आर यू हैव फोबिया देन प्लीज़ डोंट कंसिडर. वैसे तो मेरे साथ कोई ऐसा केस नहीं हुआ है, बट हुआ है कुछ लोगों के साथ, 1-2 लोगों को काटा भी है. तो इट्स जस्ट योर चॉइस. So now, alumni network. So NIT Hamirpur has a strong alumni network which can help you with guidance, network and even job opportunities, है ना. And also ये लोग ना alumni को बुलाते रहते हैं बीच बीच में, so you can get in contact with them and they can help you. ठीक है. And also this thing is also with the architecture students. आपके भी alumni आते रहते हैं, so you can contact them if you need and they will help you out. So now senior junior relationship. So मैंने अपने RD से पूछा था. RD it's like जैसे कि मेरा रोल नंबर 56 है तो आर्किटेक्चर का, so मेरे से जो सीनियर 56 रोल नंबर होगा वो मेरा RD होगा, जो मेरे से नीचे 56 होगा वो मेरा RB होगा. तो आई डोंट हैव एनी RBs, है ना, बट आई हैव RDs. सो जो मेरे सुपर मोस्ट RD थे उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि जब उन्होंने इस कैंपस में जब वो पहली बार आए थे तो उस टाइम देयर वाज लाइक डर का माहौल रहता था जूनियर्स के बीच. दे कांट इवन स्पीक अप इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स, बट अब ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है. दे आर लाइक वेरी चिल माहौल, नो लाइक ऐसा कोई डर वर वाला नहीं है सीन, लाइक इट्स चिल नाउ, ठीक है. सो किसी ने पूछा था कि सराउंडिंग में नियर बाई कैफ़ेज़ है, हैंग आउट प्लेसेस है, वेजिटेबल. सो यार हम जंगल में थोड़ी रह रहे हैं, वो एक सिटी ही है. दे आर कैफ़ेज़, दे आर वेजिटेबल शॉप्स, वहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं. सो यू विल गेट एवरीथिंग, है ना. एंड नॉट लाइक ह्यूज मॉल्स और ऑल, बट यू विल गेट कि जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स हैं, यू विल गेट हैंग आउट प्लेसेस, पार्क्स, जिम्स, है ना, और वेजिटेबल शॉप्स और मूवी थिएटर्स. नॉट सो गुड बट व्हाटएवर. एंड हाँ, ऑनलाइन डिलीवरी. सम पीपल आस्क कि ऑनलाइन डिलीवरी, तो यहाँ पे ब्लिंकिट चल जाता है NIT हमीरपुर में. रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है, पहले तो नहीं था. जियो मार्ट चल जाता है, बट उसके लिए आपको अपने नियर बाय गेट, जो एंट्रेंस गेट होता है ना, कॉलेज का एंट्रेंस गेट होता है, उधर से आपको जाके अपना पार्सल लेना पड़ेगा. क्योंकि देखो अगर आपका अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से पार्सल है तो उसे अंदर आने देते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है कि इतने बजे से इतने बजे ये बंदे सारा सामान लेके आ जाएंगे. एंड वो हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल में नहीं हो, अगर आप क्लासेस लगा तो आपका हॉस्टल के बाहर सामान रख देंगे. कुछ हॉस्टल्स में अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ऐसा हो जाए कुछ बच्चों का सामान चोरी हो जाता है तो वो गार्ड भैया के ऊपर या चाचू के ऊपर ना वो लगाते हैं ब्लेम कि मेरा तो पार्सल आया था, वट. सो फ्यू हॉस्टल्स डजंट अलो कि आप हॉस्टल के बाहर पार्सल रखो, है ना. आप ऐसा कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड को बुला के उसके हाथों में रखवा दो, मतलब किसी के रूम में रखवा दो, बट आप हॉस्टल के बाहर नहीं रख पाते हो. किसी हॉस्टल में होता है, मोस्टली में हॉस्टल के बाहर रखवा देते हैं, है ना.
और दैट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपका पार्सल गायब होता है तो वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अभी तक मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पार्सल गायब हुआ हो, है ना। सो दैट्स द बेस्ट थिंग, और मोस्टली नहीं होता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, आपकी ज़ोमेटो हो गई, देखो जो इंस्टेंट डिलीवरीज होती है ना, लाइक ब्लिंकिट हो गया एंड जियो मार्ट हो गया, या फिर आपका ज़ोमेटो हो गया, तो इंस्टेंट डिलीवरी वाली क्या होती है ना सीन, आपको उनको डिलीवरी को लेने के लिए आपको गेट पे जाना पड़ता है। जो आपके नियर बाई गेट है ना, उस पर जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो वो आते रहेंगे एंड वो दैट विल क्रिएट अ सेफ्टी इशू, है ना। सो दैट्स द थिंग। So the point is language barrier and food issues. So if you are Hindi speaking person or English, then you might not face that, but if you are like Kannada, Tamil or any other language, then you might face some issues, देखो, है ना। but you need to know one of the language, either Hindi or English, so teacher will explain you in English also, है ना। so that will not create a problem. फूड इश्यूज़, सो फूड इश्यूज़ लाइक, यार मैं बोलूँगी फूड इश्यूज़ में तो देखो हर जगह का खाना तो नहीं मिलता इधर, लाइक बट फूड इज़ ओके लाइक नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। यहाँ पे लोग, हिमाचल में लोग स्पाइसेस बहुत कम खाते हैं, तो सारा खाना फीका फीका होता है, ठीक है। बस यही एक इशू मेरे को लगता है। नया मोमोज जैसे टेस्ट करते हैं, मतलब आई तो डोंट लाइक मतलब आई डोंट लाइक फूड हेयर मच। मोस्ट ऑफ़ यू आस्क मी कि क्लोजिंग रैंक क्या है, कट ऑफ क्या है लास्ट ईयर की। सो हेयर आई एम अटैचिंग द वीडियो एक्सप्लेनिंग कि हाउ यू कैन फाइंड योर कट ऑफ एनी कॉलेज, नॉट ओनली NIT हमीरपुर बट एनी IIT or NIT of every year. So you can take a guess and play with your luck. So you can watch this video. So to find the cutoff of JOSA, you have to just go on JOSA cutoff, and I will give the website link in the description. So you have to select कि आपको कौन सी ईयर की कट ऑफ देखना है, जिसकी 2024 की देखते हैं हम, एंड राउंड कौन सा है, लाइक JOSA में जो राउंड होते हैं, ओके राउंड नंबर 5 की देखते हैं। देन इंस्टीट्यूट टाइप आपको IIT NIT का देखना है, तो NIT चूज करते हैं। इंस्टीट्यूट नेम, जैसे कि NIT हम हमीरपुर ले लेते हैं, SS। एंड एकेडमिक प्रोग्राम, आप किस प्रोग्राम के लिए सर्च कर रहे हो, सो लेट्स सी आर्किटेक्चर। एंड हेयर आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो हम यहाँ पे ऑल ले लेते हैं, ठीक है। तो सबमिट करो, देन यू विल सी कि आपको सारी की सारी क्लोजिंग रैंक मिल जाएंगी। HS का मतलब होता है होम स्टेट, मतलब जो हिमाचल की, हमीरपुर हिमाचल में आता है ना, तो हिमाचल प्रदेश का जो कोटा होता है वो होता है होम कोटा या होम स्टेट कोटा, और ये होता है अदर स्टेट, मतलब अगर आप किसी अदर स्टेट के बिलोंग करते हो, है ना। तो ये सारी कट ऑफ है ये, और फीमेल और मेल का भी होता है यहाँ पे, जेंडर न्यूट्रल, एंड फीमेल के लिए जो कट ऑफ गई है वो सब। तो यू कैन ईजिली चेक फ्रॉम हेयर कि आपको कौन सी कट ऑफ देखनी है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहा है एंड ऑल। So this is all for, and I will give the website link in the description. That's all I think for today's video. If you have any more doubts, please, I will share a post. Please comment your doubts below that post, and I will try to answer them as soon as possible, or I will try them answer in the post only. So if you want any other different video, please let me know on which topic you want to know, or on which topic I should make another video on. So I will be try to make videos for you. So thank you for watching this video. I hope this will help you, and bye bye.